A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is microeconomics and the statistics for economics. Okay. So from the previous classes we were continuously revise the chapters, as you know very well that from the 6th Feb you have going through your annual examination and the first examination is your economics. Okay, so since I am seeing that in the online as well as offline classes, students are facing the problems basically in the chapter that is simple applications of the tools of the demand and supply. Okay, so what are the different tools of the demand and supply? That means the demand and the supply. So how we can different executed to determine the price of the price of the different commodity, the situation where we find out the price or the equilibrium quantity. Okay, so we have done the numbers of the numerical questions in the online classes as well as in the videos. So simultaneously we have also discussing the chapters of your microeconomics and the statistics too. So we have done number of the numerical questions or the measures of the central tendency, that is mean, median and mode. Next we have discussed that is correlation, index number, measure of the dispersion. So you know very well due to COVID your syllabus has been reduced. Okay, you're reduced about 30%. So you no need to study the different other measures of the dispersion, except you have to study only the standard deviation, coefficient of standard deviation, variance and the coefficient of variation and the Lorentz curve too. We have also studied the chapter that is correlation. So Spearman correlation and the Karl Pearson's and scatter. So you have to study only the scatter diagram and the Karl Pearson's coefficient of correlation. You don't need to study the Spearman. As I am again and again told to you all, because you all again confused that ma'am ये chapter पढ़ना है या नहीं, मैम ये chapter पढ़ना है या नहीं. So that's why I am saying again and again कि आपको Spearman नहीं पढ़ना है, Karl Pearson's coefficient of correlation पढ़ना है, ठीक है, और स्कैटर डायग्राम भी पढ़ना है, ठीक है. और उसके साथ ही साथ we have also studying the simultaneously some chapters of your basically the microeconomics. So we have already discussed this chapter and make the video again and again and discuss the price determination, main market forms, different theory of demand, production of function we have already completed in the last class. So in today's class again we are going to study the simple applications of the tools of the demand and supply. So in this chapter what we are going to study, first of all we will discuss the price ceiling or the price flooring. Okay, so let's get started. So the topic is minimum price ceiling. Minimum price ceiling, which is also called price floor. Okay, so let's start. So for certain goods and services, fall in price below particular level is not desirable and hence the government sets floor or the minimum price of these goods and the services. Okay, ये इसमें कह रहा है कि कोई certain goods और services होती हैं जिनके लिए particular level से, जैसे हम equilibrium level की बात कर रहे हैं this point पे, अब कोई certain goods and services के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस को फिक्स करना क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल कंडीशन नहीं होती, एज वेल एज इट विल आल्सो नॉट बी डिजायरेबल. ये क्या होता है, डिजायरेबल नहीं होता है एंड हेंस द गवर्नमेंट सेट फ्लोर्स और द मिनिमम प्राइस. अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक फ्लोर, एक मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, गवर्नमेंट उसको सेट कर देती है फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज. दीज काइंड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक
फ्लोर एज वेल एज एक मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, डिटरमाइन कर देती है. सो द गवर्नमेंट इम्पोजेज लोअर लिमिट ऑन द प्राइस. गवर्नमेंट क्या करती है, एक लोअर लिमिट क्या कर देती है, फिक्स कर देती है ऑन द प्राइस दैट में बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज. जो क्या है, किसी पर्टिकुलर गुड्स, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए करती है. जैसे प्राइस सीलिंग के केस में क्या था, नेसेसिटीज गुड्स के लिए एक मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर देती है. इसमें क्या है कि कुछ गुड्स, सर्टेन गुड्स के लिए वो मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, डिटरमाइन कर देती है फॉर द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज कॉल्ड द प्राइस फ्लोर. ओके, सो व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट forces of demand and supply is the considered to the unremunerative, okay, which is not too much profitable for the conditions for the producer. The government intervene to protect the interest of the producer. देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे प्राइस हमने देखा है कि प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होती है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होता है. ओपी प्राइस, ओएम क्वांटिटी. ठीक है, बट गवर्नमेंट देखती है कि अगर प्राइस इतना डिटरमाइन हो रहा है तो ये प्राइस क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अनरिमनरेटिव और प्रॉफिट की कंडीशन नहीं होती है. इस कंडीशन पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्राइस डिटरमाइन कर देती है. अब वो प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर जिस कंडीशन पे प्राइस सीलिंग हो रही थी, हम लोग प्राइस सीलिंग पढ़े, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस कर रही थी. जैसे जो लोगों की क्या हो, नेसेसिटीज़ गुड्स हैं, बिकॉज किसी भी सोसाइटी में, किसी भी, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो हर एक लोग क्या है, इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतनी प्राइस को अफोर्ड कर पाए. इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस कर देती है, जैसे लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाए, सारे लोग क्या हो, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को वो फुलफिल कर सकें. बट इन द केस ऑफ प्राइस फ्लोर, गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, बट अगर जैसे ही प्राइस कम करती है तो प्रोड्यूसर्स को क्या है, लॉस होने लगता है. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ काम क्या है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके फेवर में भी करती है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए करती है कि सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस वो इक्विलिब्रियम प्राइस से वो ज़्यादा कर देती है. जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो लोग क्या करने लगेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई भी ज़्यादा करने लगेंगे. ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज कंसीडर्ड टू बी अनरिमनरेटिव फॉर द प्रोड्यूसर. कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो रहा है बाय द मार्केट फोर्सेज, वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूसर्स के लिए अनरिमनरेटिव हो जाती है, मतलब वो प्रॉफिट की कंडीशन नहीं होती है. द गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर. उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है और जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. सो मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ फिक्सेशन ऑफ द प्राइस फ्लोर आर एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशन. इसमें दो प्रोग्राम करती है गवर्नमेंट. क्या करती है, पहला एग्रीकल्चर में करती है, एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट program, and second one is minimum wage legislation. Minimum wage legislation. ठीक है, ये क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए इसमें ये दो प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम और मिनिमम वेज लेजिस्लेशन आता है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, वन बाय वन एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो हमने देखा प्राइस फ्लोर के लिए जो ओपी प्राइस था, गवर्नमेंट क्या करती है, एक OP1 प्राइस को डिटरमाइन कर देती है, जहाँ पे सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है.
जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई भी फिर ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, राइट, एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, ओके। सो through an agricultural price support program, the government imposes a lower limit on the purchase of the price for some of the agricultural goods, and the floor price is normally set at a level higher than the market determined price for these goods, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम में द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ लोअर लिमिट ऑन द परचेज प्राइस फॉर द सम ऑफ द एग्रीकल्चरल गुड्स। गवर्नमेंट क्या करती है, लोअर लिमिट क्या है, कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या कर देती है, कोई भी परचेज करना हो डिफरेंट प्रोडक्ट को, उसके लिए एग्रीकल्चरल गुड्स को एक लोअर लिमिट डिसाइड कर देती है, एंड द फ्लोर प्राइस इज नॉर्मली सेट एट अ लेवल हायर देन द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। और जो एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है वो क्या होती है, जो भी एक मार्केट की डिटरमाइंड प्राइस है वो उससे ज़्यादा करती है, बिकॉज इसमें कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि सेलर के फेवर में कुछ कर रही है। प्राइस सीलिंग में क्या था, वो जो बायर हैं उनके फेवर में कर रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेलर के फेवर में कर रही है, इसलिए एक लोअर लिमिट एक डिटरमाइन कर दे रही है। वो फ्लोर प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है वो उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट फॉर द शुगर। जैसे लास्ट में हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, वीट का एग्जाम्पल लिया था प्राइस सीलिंग में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं शुगर का, ठीक है। सो शोज अ निगेटिवली स्लोप डिमांड पर। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, ओपी ओक्यू quantity of sugar and price of the sugar we will take price, okay. So here this is DD curve, this is SS curve. So here it is given that the negatively sloped market demand curve you know already, and the positively sloped market supply curve, because positive relation between the price and the quantity supplied. सो इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये दोनों क्या है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ई पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है विच डिटरमाइन द प्राइस, ओपी प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है और क्वांटिटी ओक्यू क्वांटिटी को वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। सो इफ प्राइस ओपी इज कंसिडर्ड टू बी अनरिमनरेटिव, अगर ये जो ओपी प्राइस है वो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए क्या है, अनरिमनरेटिव है, मतलब वो प्रॉफिट की कंडीशन नहीं है, विच डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंसेंटिव्स टू द फार्मर टू प्रोड्यूस शुगर। अब ये इतना ओपी प्राइस किसी भी सप्लायर और फार्मर के लिए उनको इतना इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि वो उससे ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्शन करें। फिर कह रहा है देन द गवर्नमेंट डिक्लेयर OP1 एज द मिनिमम प्राइस। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी, OP1 को एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट इसको डिटरमाइन कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को बायर और सेलर दोनों को देखना है। ऐसा नहीं कि वो बस बायर को पर्सपेक्टिव देख के सेलर को छोड़ दे। अगर सेलर कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बायर उसको कंज्यूम कैसे करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का फेवर प्रोड्यूसर्स के लिए भी होता है कि अगर जो भी फार्मर्स हैं उनको इतनी प्राइस पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको ये इंसेंटिव नहीं मिल रहा है कि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करें, इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, OP1 प्राइस को एक मिनिमम प्राइस, प्राइस फ्लोर जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड
कर देगी। फिर कह रहा है सच मेजर आर मीन टू इंसुलेट फार्मर्स फ्रॉम इनकम फ्लक्चुएशन विच रिजल्ट प्राइस वेरिएशन इन द फ्री मार्केट। ये क्या होगा, फ्री मार्केट में, जो फ्री मार्केट मीन्स जहाँ पे हम लोग मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ये जो फार्मर्स है उनको क्या करेगा, कोप अप करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि वो क्या करे, शुगर का प्रोडक्शन करें। सो व्हेन द प्राइस इज फिक्सर हायर, जब प्राइस फिक्स हो जाएगी हायर फ्रॉम ओपी टू OP1, देन कह रहा है द मार्केट डिमांड फॉल्स टू OM2। फिर क्या होगा, जो मार्केट का डिमांड है, द मार्केट डिमांड फॉल हो जाएगी OQ से OQ1 पे। यहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड क्या कर जाएगी, वो फॉल कर जाएगी एंड मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी। डिमांड देखिए कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी फ्रॉम OQ टू OQ2। ठीक है, डिमांड इफ प्राइस इंक्रीजेस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1, OQ टू OQ1। इतने से डिमांड कम हो गई, देखिए डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, एंड सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ2। प्राइस क्या हो जाएगी, सप्लाई डिमांड क्या हो गई, देखिए डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो डिमांड OQ से OQ1 हो जाएगी और सप्लाई OQ से OQ2 हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है देयर इज एक्सेस सप्लाई, यहां पे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बिकम्स मोर देन दी डिमांड। सप्लाई क्या हो रही है, डिमांड से ज्यादा हो रहा है। सो द गवर्नमेंट विल बाय द अनसोल्ड सरप्लस बाय कमिटिंग टू बाय द सरप्लस एट द प्री अनाउंस सपोर्ट प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए, कि जो भी सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस गुड्स है, उसको क्या करेगी, जो प्रायरली वो प्राइस क्या थी, अनाउंस हो चुकी थी, उतने पे वो गुड्स को सोल्ड कर लेगी, एज वेल एज अनसोल्ड को क्या करेगी, जो भी अनसोल्ड गुड्स है उसको वो बाय कर लेगी। मतलब गवर्नमेंट का आपने वर्ड सुना हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी अनसोल्ड प्रोडक्ट हैं फार्मर्स के, वो एक प्री अनाउंस्ड प्राइस होगी, वो जो भी फार्मर्स हैं इनको बता दिया जाएगा, उतने पे गवर्नमेंट क्या कर लेगी, वो सारे अनसोल्ड प्रोडक्ट को बाई कर लेगी। दिस में बी एडेड टू दी इट्स बफर स्टॉक, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो भी इसका बफर स्टॉक होता है, जो उसके वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर लेगी, बाई कर लेगी, और यूज फॉर दी एक्सपोर्ट। अब गवर्नमेंट उन सारे प्रोडक्ट को क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा है, जो फार्मर्स, देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है उसको प्राइस अब ज्यादा मिल रहा है, उस प्राइस के ज्यादा मिलने पे वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। बट ऑब्वियस है कि वो मोटिवेट होगा, जैसे ही वो और प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होगा, कि प्राइस OP से अब OP1 प्राइस मिल रही है उसको, अब वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। प्रोडक्शन जब ज्यादा करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी उसका सरप्लस गुड्स है, फार्मर ने बहुत ज़्यादा शुगर को, मतलब शुगर केन को प्रोड्यूस कर लिया, गवर्नमेंट उस केस पे क्या करेगी, अनसोल्ड प्रोडक्ट को परचेज कर लेगी। उस परचेज करने के बाद वो अपने जो भी उसका बफर स्टॉक है, जो उसका वेयर हाउस होता है, वहाँ पे सेफली रख लेगी, और उस ज़्यादा अबंडेंट प्रोडक्ट को वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करने में यूज़ करेगी, और कंट्री का क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो कह रहा है कि बफर स्टॉक में भी यूज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। अब अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, इन केस अगर इस साल क्या हुआ, शुगर का प्रोडक्शन हो गया, शुगर केन का, बट नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ड्रॉट हो गया, या फ्लड आ गया, या कोई और नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, वॉल्केनो आ गया, सुनामी आ गई, समथिंग एल्स, तो उस कंडीशन पे अब
प्रोडक्शन नहीं हो पाया शुगर का, तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट, उन सारे शुगर को फिर लोग यूज उसको कर सकते हैं। इसलिए जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है और एज वेल एज जो अबंडेंट प्रोडक्ट है वो नेचुरल कैलामिटीज के टाइम भी वो यूज हो सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS है, जिसमें राशन शॉप्स होती हैं, जो लेस अमाउंट पे लोगों को गुड्स को सोल्ड आउट किया जाता है, उस जगह पे उसको यूज़ किया जा सकता है। फूड फॉर गिविंग टू वर्कर्स अंडर द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे फूड फॉर वर्क, लोग काम क्यों कर रहे हैं, फॉर दी फूड, इन दैट केस उसको भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। सो मिनिमम प्राइस सीलिंग ऑल्सो मे कॉज इलीगल सेलिंग बिलो द सपोर्ट प्राइस और दी फ्लोर प्राइस। अब मिनिमम प्राइस सीलिंग है वो ये भी क्रिएट कर देता है कि लोग इलीगल सेलिंग करने लगते हैं। ठीक है। सो इट इज बिकॉज एक्सेस सप्लाई दैट दे टेंड टू कट प्राइस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। ठीक है। अब इन सारे जो भी डिफरेंट लूप होल्स हैं लेजिस्लेशन में, उसकी वजह से इसका भी क्या है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी इन सारे को क्या है, प्राइस को कम करने, प्राइस को क्या कर दिया जाता है, लोग इलीगल एक्टिविटी के लिए क्या कर देंगे, प्राइस को कम कर देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोल्ड आउट कर देंगे। इससे लोगों को क्या है, पहले कम लोगों का प्राइस ज़्यादा होने से लोग उसको परचेज नहीं कर रहे थे, अब प्राइस कम करके वो उसको क्या करेंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। तो इफ़ गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू बाय द सरप्लस, अगर गवर्नमेंट एबल नहीं है कि वो सरप्लस को बाय कर सके, सो द एक्सेस सप्लाई वुड क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर। अब अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो कंपटीशन अमंग द सेलर हो जाएगा, और जैसे ही कंपटीशन अमंग द सेलर हो जाएगा तो प्राइस फिर से OP1 से OP पे आ जाएगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, अगर गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, प्राइस को एक प्राइस फ्लोइंग कर रही है, प्राइस डिटरमाइन कर रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो सरप्लस गुड्स को परचेज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उसको परचेज नहीं कर रही है तो कंपटीशन हो जाएगा अमंग द सेलर्स एंड पुल द प्राइस डाउन टिल द इक्विलिब्रियम प्राइस पर। वो प्राइस क्या हो जाएगी, जो OP1 प्राइस हो गई थी वो कंपटीशन हो जाएगा सेलर में। जब सेलर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली प्राइस विल फॉल डाउन, प्राइस डाउन हो जाएगी और फिर वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। ओके, मिनिमम वेज legislation. Okay. So government fixes minimum wages of the labor above the equilibrium rate of wage. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, एक मिनिमम वेज लेबर के लिए क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, विच इज डिटरमाइंड बाय द फ्री इंटरैक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट क्या कर देती है, वेज डिफरेंट लेबर्स के लिए फिक्स कर देती है। OP OM क्वांटिटी प्राइस DD SS कर्व इक्विलिब्रियम। ओके, सो इट इज डन विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर। बेसिकली गवर्नमेंट ये इसलिए करती है कि जो भी लेबर है उनका इंटरेस्ट क्या हो, प्रोटेक्ट रहे, सिंस दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, बिकॉज उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी लेबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर देती है। देयरफॉर गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम वेज रेट। गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज रेट भी फिक्स कर देती है एट अ हायर लेवल, एक हायर लेवल पे देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज रेट। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम वेज रेट से वो एक हायर लेवल पे वेज रेट को फिक्स कर देती है। सो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन इज अंडरटेकन टू इंश्योर दैट wages paid to the worker do not fall below a certain minimum wage rate level. ये इसलिए किया जाता है कि एक जो मिनिमम वेज रेट डिसाइड है उससे वो कम ना हो, क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो लेबर जो डिफरेंट है वो डिस्करेज होंगे, वो कमोडिटी को प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे,
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज को डिसाइड कर देती है. सो हेंस इन द लेबर मार्केट अ फ्लोर इज सेट ऑन दी वेजेस. अब फ्लोर एक क्या है, वेजेस के लिए भी सेट कर दिया जाता है. दैट इज वेजेस आर नॉट अलाउड टू फॉल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, कि अब जो वेज है वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा फॉल नहीं करेगी. सो लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओएम क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है. अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, एक प्राइस को डिटरमाइन कर देगी, वेज को एक्स्ट्रा डिटरमाइन यहाँ पे कर देगी. ठीक है, यहाँ पे हम इसको वेज ले लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेज डिटरमाइन हो रहा है. ठीक है, अब क्वांटिटी किसकी हो जाएगी, यहाँ पे लेबर की, क्योंकि अगर वेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लेबर की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो प्राइस को OP1 कर देगी. ठीक है, या हम इसको W भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर वेज ले जाए तो उसको W से भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ द वेज रेट OP इज कंसीडर्ड टू बी लो, अगर ये क्या है कि अगर OP वेज रेट है लेबर्स के लिए, वो उनके सब्सिस्टेंस के लिए, वर्कर के लिए इतनी एनफ नहीं है. सो विच डज नॉट मोटिवेट लेबर टू वर्क. अब इतना OP जो वेज है वो डिफरेंट लेबर को मोटिवेट नहीं कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें. तो मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट क्या करेगी, OP1 डिटरमाइन कर देगी. इन अ लेबर मार्केट वर्कर्स डिटरमाइन दी सप्लाई ऑफ लेबर एंड फर्म डिटरमाइन दी डिमांड ऑफ लेबर. लेबर मार्केट में वर्कर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, लेबर की डिटरमाइन करेंगे, और फर्म क्या करेगी, डिमांड ऑफ द लेबर को डिटरमाइन करेगी. एट द वेज रेट OP1 वेज रेट पे देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू M1 M2. ठीक है, जैसे ही प्राइस क्या होगी, एक्सेस सप्लाई हो गई, ये एक्सेस सप्लाई, बिकॉज सप्लाई बिकम्स दी मोर देन दी डिमांड. वो डिमांड से क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है. एंड डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज फ्रॉम दी OM टू OM. यहां तक क्या होगी, डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जा रही है, और सप्लाई क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है. बाय द वर्कर इन द इंक्रीज फ्रॉम OM टू OM1, सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है. डिमांड फॉर द लेबर क्या है कि कम हो जा रही है. एक्सेस सप्लाई ऑफ द लेबर अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज द फॉलोइंग. अब एक्सेस सप्लाई अगर लेबर की हो जाएगी, जब सप्लाई ज्यादा हो जा रही है और डिमांड कम हो जा रही है, तो लेबर बहुत ज्यादा है और डिमांड उतने की है ही नहीं, तो दिस कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहीं पे प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डिमांड देखो, डिमांड बस इतनी है और सप्लाई जो भी लेबर की इतनी हो रही है, देखिए इतनी, ये जो ज्यादा हो रहा है यही कॉज क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज कर रहा है. ठीक है, सो फर्म एम्प्लॉय ओनली दोज वर्कर हु आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है तो फर्म क्या करेगी, उन्हीं को हायर करेगी जो क्या है, स्किल्ड है, उनके पास एक्सपीरियंस है. क्योंकि सप्लाई बहुत सारी है, डिमांड हमें बस इतनी है, तो उसमें क्या होगा, फिल्टरेशन होगा ना. गवर्नमेंट फिल्टर करेगी या कंपनीज फिल्टर करेंगी कि जिनके पास स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, उन्हीं को वो लेगी. ठीक है, वर्कर में बी एम्प्लॉयड और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द शॉर्ट पीरियड. अब वर्कर क्या है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा शॉर्ट पीरियड, मतलब 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के, अगर 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, उनमें देखा जाएगा कि कैपेबिलिटी नहीं है तो उनको निकाल के दूसरे को रखा जाएगा. क्योंकि अब क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है. सो देयर मे बी रिडक्शन इन दी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट. जैसे अब रिडक्शन भी हो जाएगा, लाइक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, या बच्चों के, उनके बच्चों को स्कूल में जो एजुकेशन की, ये सारी फैसिलिटी को भी कम कर दिया जाएगा. फर्म्स में शिफ्ट टू दी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. फर्म क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरह की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो जाएंगी. इफ सम वर्कर कैन नॉट फाइंड वर्क एट द मिनिमम वेज रेट, अगर कोई वर्कर क्या है, मिनिमम वेज रेट के लिए वर्क नहीं पा रहा है, मे सेल देयर सर्विसेज एट अ प्राइस बिलो द मिनिमम वेज रेट एंड दस इवेट द. अब अगर कोई इतने प्राइस पे कोई भी जॉब नहीं पा रहा है, उसको वर्क नहीं मिल रहा है, देन ही और शी विल रेडी टू डू वर्क एट द प्राइस. उसको क्या है कि वो अगर
उसको अगर कोई भी लेबर को 500 पर डे मिलता है, बट अगर उसको इतने पे जॉब नहीं मिल रही, इसको वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है 300 पर डे के लिए भी तैयार हो जाएगा। बिकॉज अब उसको क्या है कि काम नहीं मिल रहा है, तो उसको मिनिमम जो भी बेसिक उसकी नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करने के लिए उसको पैसा तो चाहिए, तो वो क्या है 300 पे ही रेडी हो जाएगा। तो ये जो लॉ बन रहा है कि OP1 प्राइस करने से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये लॉ क्या हो जाएगा, इवेड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज अब OP प्राइस से प्राइस क्या हो जा रही है, OP हो जा रही है। ओके, so this is all about your chapter, that is simple application of the tools of the demand and supply. From this we have completed this chapter.